Good morning students, this is science video. We have So students, today we are going to revise chapter number 2, that is adaptation in plants, and in this you have to learn all the exercises and question answers to achieve a good marks. Clear? So here, this is the first exercise of the chapter number 2, that is give an example of plant of each adaptation mentioned below. That means you have to give the example of a plant. Clear? You have to give the example of a plant. So roots above the ground, it's a name of plant, mangrove tree. Clear? So cactus, spines instead of leaves, that are cactus. It is a name of a plant. Don't write thorns or something like that, because in the class test you have written all these things. So make sure that you should write only the name of a plant. Conical shaped trees, so conifers नहीं होंगे यहाँ पे, पाइन होगा. ठीक है, प्लांट का नाम पूछा है, यहाँ पे शेप नहीं पूछा है. तो कोनिकल शेप्ड ट्रीज़ का अगर एग्जाम्पल देना चाहें तो वो पाइन होगा. पैटर्न ऑफ शेडिंग लीव्स इन अ स्पेसिफिक सीजन, एक पैटर्न होता है जहाँ पे लीफ अपने आप गिरती हैं पेड़ों से, तो वो स्पेसिफिक सीज़न क्या है वो एग्जाम्पल बताइए. तो वो है ऑटम का. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्जाम्पल, एंड आफ्टर दिस द मेन एक्सरसाइजेस कम on page number 23. Clear? So first one is take the correct answer. Which of the following aquatic plant has long, thin, flexible and hollow stem? So you have to mention all these, the correct one which has all these features. Clear? Duckweed, grass, hydrilla, lotus. Lotus is a fixed plant which has long, flexible and hollow stem. Clear? Which of the following plant is an aquatic plant? You all know that aquatic plant live under the water or on the water. Clear? The mango tree is on the land. Neem on the land. Mushroom is all on the land, but water lily is inside the water. Clear? So aquatic plant is water lily. Which of the following plant has root above the ground? Above the ground there is only one thing, that is mangrove. Clear? Which of the following is an adaptation of desert plant? You all know that desert plant have spines, but later on they have leaves, but later on they reduce to spine. Clear? So what are the adaptation? Long leaves, they don't have long leaves. Spongy stem, yes they do have. Roots above the ground, no they don't have. Spines instead of leaves, this is the correct one. Spongy stem भी हो सकता था, but spongy stem उतना खास वो वाटर में होता है ज़्यादातर, लेकिन spines instead of leaf is the correct one. ठीक है, जो सबसे करेक्ट लगता है वही टिक करना है. Fill in the blanks. The plant in hilly areas are dash in shape. As you all know that in the fill-ups spellings are very very important, because due to spellings you are getting the marks of the fill-ups. If the spelling is incorrect, I will give 0 on it. Clear? So learn the spellings of the fill in the blanks. Is it clear? If it is a mistake of A, O, vowel, then also it will be wrong. So make sure that spelling will be accurate. The plant in hilly areas are dash in shape, conical in shape. हिली एरियाज़ में कोनिकल शेप में ही प्लांट उगते हैं. कोकोनट इज़ फाउंड इन डैश एरियाज़, कोस्टल एरियाज़. कोस्टल एरियाज़ कौन से होते हैं? जो समुद्र के किनारे बसे होते हैं उनको हम बोलते हैं कोस्टल एरियाज़. ठीक है, तो कोकोनट आपके समुद्र के किनारे ही दिखते हैं. द स्टेम ऑफ डैश प्लांट हैव स्पॉन्जी एंड फिल्ड विद एयर. अब फ्लोटिंग प्लांट ही है जो स्पॉन्जी होता है और फिल्ड विथ एयर होता है. स्पॉन्जी क्यों? हल्का होने के लिए, और फिल्ड विथ एयर मतलब उसके अंदर खालीपन होता है, तभी वो फ्लोट कर पाएगा. क्लियर? तो फ्लोटिंग प्लांट ही ऐसा है जिसके अंदर स्पॉन्जीनेस होती है और फिल्ड विथ एयर होता है. मैंगो इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट. तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्री बोल दिया है,
तो ये समझना है कि यहाँ पे टेरेस्ट्रियल नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों ने क्लास टेस्ट में यहाँ पे टेरेस्ट्रियल लिख दिया था और आर्ग्यू किया था कि मैम टेरेस्ट्रियल तो होता है, लेकिन ट्री है यहाँ पे, ध्यान देना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो मैंगो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एवरग्रीन ट्री, प्लांट की बात नहीं की है, यहाँ पे प्लांट की बात करते तो हम लिख देते कि टेरेस्ट्रियल प्लांट है, क्लियर। अब हाइड्रिला इज एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर प्लांट, क्लियर। यहाँ पे हाइड्रिला किसका एग्जाम्पल है, अंडर वाटर का। एक्वेटिक लिखेंगे तो एक्वेटिक नहीं आएगा, ठीक है, समझ के काम करिएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स की बात की गई है जो कि आपको अच्छे से पता है, ठीक है। नाउ मैच द कॉलम, देयर आर सम क्वेश्चंस गिवन, टेप ग्रास, मैंगो ट्री, गुलमोहर ट्री, प्रिकली पेयर, मैंग्रोव। तो ये आपके उसी से रिलेटेड हैं ऑप्शंस भी जो आपको लिखने हैं, क्लियर। नाउ गिव रीज़न, फ्रॉम हेयर you will get the question answers of this chapter. So first one is give reason of the following statements. Desert plant have small leaves or no leaves? Desert plants के पास small leaves होती हैं, नहीं तो leaves होती नहीं है, सही बात है। डेजर्ट प्लांट के पास जब वो स्मॉल होता है तब उसके पास छोटी छोटी लीव्स होती हैं, लेकिन जैसे ही वो ग्रो करता है वो लीव्स क्या हो जाती हैं, स्पाइंस में रिड्यूस हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लीव्स होंगी तो ज़्यादा खाना बनेगा और ज़्यादा खाना बनने के लिए पानी की ज़रूरत है, और पानी वहाँ पे है नहीं, तो पानी कम से कम इस्तेमाल हो, इसलिए वो लीव्स क्या एडाप्टेशन कर ली हैं कि वो स्पाइंस में बदल गई हैं, ठीक है। अब मैंग्रोव ट्रीज़ हैव रूट्स अबव द ग्राउंड। मैंग्रोव जो है वो एक स्पेशल एरिया में ही उगते हैं। मैंग्रोव ट्री कहाँ उगते हैं? मार्शी एरियाज़ में उगते हैं। तो मार्शी एरियाज़ क्या होते हैं? दलदल वाले इलाके या फिर कीचड़ वाले इलाके। कीचड़ वाले इलाकों में क्या होता है, एयर नहीं अच्छे से आ पाती है, पानी के अंदर होता है ना, क्योंकि पानी भरा है उन होल्स में, जिन होल्स में एयर जानी थी, तो उन होल्स में पानी भर गया है तो वो सांस नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैंग्रोव रूट्स, ये जो रूट्स होंगी इनकी मैंग्रोव ट्रीज़ की, वो इनफ एयर नहीं ले पाती हैं ज़मीन के अंदर, इसीलिए उनकी अडेप्टेशन क्या है, ताकि वो फ्रेश एयर ले सकें तो वो ग्राउंड के अबव उगती हैं, ठीक है, ज़मीन से ऊपर उगती हैं, समझ गए। नाउ व्हाट इज़ अडेप्टेशन? अडेप्टेशन, अब यहाँ पे ध्यान रखना है 1 और 2 सेंटेंसेस का, ठीक है। तो एबिलिटी टू एडजस्ट एंड अडेप्ट टू सर्वाइव इन अ नेचुरल हैबिटेट, इसका एक बड़ा सा भी है जिसके साथ मैं अगर एग्जांपल भी देना चाहूँ तो दे सकती हूँ। अगर लॉन्ग में आता तो ऑब्वियसली हम 6-7 लाइन का लिख सकते थे, लेकिन ये 1 और 2 का है तो इसलिए छोटा सा ही यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो 1 और 2 सेंटेंसेस ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन हैं जिनके वर्ड लिमिट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये आंसर इन डिटेल है, अब इनको समझाएंगे तो फिर टाइम निकल जाएगा ज़्यादा, तो ध्यान रखिएगा कि अभी मैं ये सारे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, और आई हैव गिवन यू ऑल द टू लर्न द चैप्टर नंबर 2, दैट मीन्स वॉट एवर आई एम explaining I will ask the question from this, clear? So thank you so much.